Good morning, everyone. Today we are going to study the fourth chapter of History, class 6, the first city. The development of agriculture encouraged people to settle down along river banks. The fertile soil and the abundant supply of water found in the river valley made these the places of choice for the early farmer. Around 5,000 years ago, some of these settlements grew into cities. These cities became the center of the earliest civilization. The Harappan civilization and the first cities. Around 5,000 years ago, cities and towns started developing along the bank of the Indus River in the northwestern part of the Indian subcontinent, making the beginning of one of the largest civilization of the ancient world. The Harappan civilization by around 2600 BCE, when it was at its peak. The Harappan civilization extended from Balochistan, present day it is located in Pakistan, in the west to the Yamuna river in the east. To the south, the it stretched straight it straight to Gulf of Cambay. After flourishing for more than 1,000 years, this civilization went into a sudden decline and by 1700 BCE had ceased to exist. Time went by, and people forgot about the Harappan cities. Then, after almost 4,000 years, after 4,000 years, the Harappan civilization was accidentally rediscovered by engineers building a railway line in the Punjab area of present-day Pakistan. When they found a ready supply of beautiful made brick, pro- prompted archaeologists to excavate the site. They found the remain of a once flourishing city and named the Mohenjo-daro, meaning mound of the dead. Soon another city almost identical to it was discovered further north. This was called Harappa. Since then, archaeologists have discovered more than 1,000 settlements belonging to the Harappa civilization. While some, like Harappa, Mohenjo-daro, and Mehergarh, fall in Pakistan today, others like Dholavira, Lothal, Kalibangan, Ropar, Banauli lie in India. Of the sites excavated in India till now, Rakhigarhi in Haryana is the largest. The main features of the Harappa civilization. Though the Harappa civilization was spread over such a vast area, there was a striking resemblance between its major cities, and all of them shared certain features in common: town planning. One of the outstanding features of the Harappan civilization was the high level of urban planning seen in its cities. The streets were laid out in a grid. They ran in straight line east to west and north to south and cut each other at right angle. The cities also had highly advanced sewage and drainage system. Each city was further divided into segments: the upper town and the lower town. Lower town. Lower town consists of residential houses of different size built with burnt brick
of a standard size. Most of the houses had a well, a bathroom, and a covered drain that was connected to the street drain. The rooms were built around an open courtyard. Some houses were double story. The main road were broad, with smaller lane cutting them at right angle. The upper town. The upper town consists of a raised area called the citadel, where important buildings were situated. The height of the citadel possibly served as a mean of protection during flood. The drainage system. The drainage and sewage system were very advanced, more advanced in fact than seen in many parts of the world today. Along each of the street, rain drain covered with loose brick could be slipped to clean and drain. Washed from houses first flowed into a swamp. The solid waste collected in the swamp and the wastewater alone flow into the street drain. हम आज चौथे चैप्टर में हैं इस हिस्ट्री के। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि विकास के क्रम में जैसे मानव ने कृषि का विकास कर लिया था, उसने मानव को प्रोत्साहित किया कि वो रिवर के किनारे अपनी दुनिया बसा सकता है, अपने घर द्वार बसा सकता है। वहाँ पे नदी के किनारे उसको उपजाऊ मिट्टी मिली, बहुत सारा पानी मिला और ये सभी उसको एक सुव्यवस्थित अवस्था मिला जहाँ पे उसको चॉइस मिला कि यहाँ पे वो रह सकते हैं। करीब 5000 साल पहले उनमें से कुछ अधिवासी शहर के रूप में तब्दील हो गए थे। ये शहर बाद में जो है शुरुआती सभ्यताओं में से एक मानी जाती हैं। जैसे पहला हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द फर्स्ट सिटीज। लगभग 5000 साल पहले शहर और नगर बनना शुरू हो गए थे जो कि रिवर के किनारे बनते थे। तो हड़प्पन शहर जो था वो इंडस रिवर के किनारे बना हुआ था, जो कि उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था, जो कि भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। मार्किंग द यहाँ से इसका शुरुआत मिलता है और पुराने विश्व में हड़प्पा सबसे पुराना सभ्यता के रूप में माना भी जाता है। 2600 साल पहले जब ये अपने सबसे चरम ऊंचाई पर था, मीन्स कि सबसे ज़्यादा विकसित जिस समय था, यह फैला हुआ था बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में आज है, वहाँ से लेकर यमुना रिवर तक जो कि पूर्व में, और वहीं पे दक्षिण में यह गल्फ है कम्बेक से लेकर ये काफ़ी लंबाई दूरी तक फैला हुआ था। फिर उसके बाद 1000 साल के बाद इस सिविलाइजेशन जो है अचानक से ये ध्वस्त हो जाता है। करीबन 1700 ईस्वी में इसके नामो निशान मिट जाते हैं। समय गुजरने के साथ साथ लोग भी जो हैं इस शहर के बारे में भूल चुके होते हैं। काफ़ी समय के बाद 4000 साल लगभग पहले ही हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था, वो भी दुर्घटनापूर्ववश, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंजीनियर जो है वो रेल लाइन बिछाने इस पंजाब के क्षेत्र की तरफ में आए थे, जहाँ पे उन्हें रेडी मटेरियल मिला था, जो कि पटरियों के नीचे जो पत्थर लगाए जाते हैं वो रेडी मटेरियल यहाँ पे मिला था। तब इतिहासकारों का ध्यान इसके तरफ में किया और उन्होंने इसकी खुदाई की। जब ये खुदाई करते हुए पाए तो उसका नाम जो पहले रखा गया था मोहनजोदाड़ो। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। उसी के बाद फिर एक नया जो खोजा गया, जो शहर पाया गया था, वो हड़प्पा नाम रखा गया। इसके बाद से आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसको खोजबीन करते गए और इसके हज़ारों की संख्या में अधिवासी इसमें यहाँ पे मिले, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए। वहीं पे कुछ हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो और मेहरगढ़ यह पाकिस्तान में आज के समय में है। वहीं पे धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, रोपर, बनावली ये भारत में पाए जाते हैं। वहीं पे कुछ साइट ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी भी खुदाई हो रही है, जैसे कि हरियाणा में राखी गढ़ी। यहाँ सबसे विस्तृत बड़े इलाका मिला हुआ है जिसकी खुदाई आज भी हो रही है।
इस सभ्यता के कुछ मुख्य विशेषताएं भी थी। हड़प्पा सभ्यता का जो इतना बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इतना सुव्यवस्थित जो नगर था, यही इसका सबसे बड़ा विशेषता है। इसमें सबसे पहला टाउन प्लानिंग था, शहर को नियोजित करके बसाया गया था। सबसे बड़ी विशेषता जो कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, कि यहाँ पे बहुत ही उच्च स्तरीय शहरी क्षेत्र को बनाया गया था। जैसा कि देखने पे मिलता है, यहाँ की जो सड़कें थी वो सीधी एक ग्रिड नुमा और एक दूसरे को वो राइट एंगल पे काटती हुई मिलती हैं। वहीं पे यहाँ पे जो सीवेज लाइन और ड्रेन लाइन जो था वो सबसे ज़्यादा डेवलप था। यह शहर को दो भागों में बांटा गया था, अपर टाउन और लोअर टाउन में। लोअर टाउन जो था वो निवास क्षेत्र हुआ करता था आम लोगों का, जो कि स्टैंडर्ड ईंटों से बना हुआ करता था, और एक घर के अंदर में कुआं, बाथरूम और ढका हुआ नाली और सीवेज लाइन होता था, जो कि शहर के सड़क के मुख्य सीवेज लाइन से नाली से जुड़ा हुआ होता था। जो रूम वगैरह जो बनाए जाते थे वो काफ़ी बड़े और खुले हवादार बनाते थे, और कई बिल्डिंग तो डबल स्टोर भी मिले हैं, 2 तल्ला मकान भी यहाँ पे मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की थी कि यहाँ की सड़कों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो कटिंग हुआ करते थे एक दूसरे से सड़क, वो राइट एंगल पे काटते थे। अपर टाउन या ऊपरी नगर, जिसको कि जहाँ पे ऊंचाई पे बनाया जाता था, और ये खास करके कहा जाता था सिटाडेल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मुख्य भवन ही अधिकतर मिलते थे, जैसे कि किसी तरह से प्रशासन कार्य को चलाने वाला, या कोई लोकसभा हो सकता है या संसद, या फिर वहाँ पे जो नियम कानून को चलाने वाले लोग, या फिर किसी तरह का कार्यालय हो सकता था, ऐसा पॉसिबली माना गया है। या फिर यह भी कहा जाता है कि ये इसको ऊंचाई पे इसलिए भी बनाया गया था क्योंकि जब कभी बाढ़ आए तो वहाँ पे पानी ना पहुँचे, तो लोग वहाँ पे जाके रह सकते थे। ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे सबसे जो बड़ी विशेषता ये भी थी कि वहाँ का जो नाली निकासी और सीवेज निकासी जो थी वो बहुत ही आज से ज़्यादा उन्नत थी। अगर कहा जाए तो ये आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही देखा जाता है कि उसके समान है। ये सड़क के बीचों बीच भी नाली हुआ करता था, और हर एक घर से नालियाँ निकल के उसके बीच में जाती थी। ये डायरेक्टली घर से निकलने वाली नालियों का पानी जो डायरेक्टली सड़क में नहीं जाता था, इसको एक स्वैम्प में जाना होता था। स्वैम्प में वहाँ पे जो कचरे होते थे उसको निकाल लिया जाता था, और पानी को आगे की ओर जाने दिया जाता था। इस तरीके से उन्होंने अपने नगर को विस्तार और विस्तृत करके बनाया हुआ था।